वेरी ऑनर्ड कि सर हमारी कॉलेज में आए। आज के दिन के लिए मैं शुरू से ही बहुत एक्साइटेड थी। कितना अच्छा था वो फीलिंग था, आई कांट जस्ट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। क्योंकि मैं राहुल सर को मेरे पीछे उठाकर ला रही थी। Hello. You have a nice college here. Thank you so much. I mean, it's quite an impressive building. It's a nice place. It's sort of also got a very nice feel to it. I have a question. So, you know, I walked from Kanyakumari to Kashmir and I met like thousands and thousands of young people. And I would ask them, what do you want to do after you graduate? And then they would say, well, yes, we want to do it. And then when I press a bit more, they'd say, no, actually, our parents want us to do it. Yes, sir. How do you react to this? We also fight with our parents. Like, we don't want to do सरकारी नौकरी as such. और ज़्यादा मन नहीं है. But they're like, कोशिश तो करके देखो. अगर लग गई तो बहुत अच्छी बात है. नहीं लगी तो तुमको करना वो कर लेना. तो it's again कि है ना, तुमको अपना stable अगर रखना है तो तुमको सरकारी नौकरी में जाना है. तो ये feed किया जाता है from very beginning. इवन इन द स्कूल्स हमको ना बताया नहीं जाता है कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आगे जाके. अगर हम साइंस चूज कर रहे हैं तो वी ऑल नो जस्ट डॉक्टर एंड इंजीनियर. वी डोंट नो वी कैन बी एस्ट्रोनॉट एज वेल. So this is a very valid point. What they do is they will not actually show you the options. Right? They will not tell you that भाई आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी. They will only tell you that these are the 3 or 4 options. Then many of you will not be able to do those options. Then you will be upset that, you know, I spent so much time studying for I and nothing happened. So I think there's a problem with the system. The picture in our college is a bit different. नहीं आपका तो स्पेशल है, वो अलग बात है. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूँ. अच्छा, आप क्या करना चाहती हैं? Sir, I run a dance studio. आज से 10 साल बाद आप क्या करोगी? Sir, मैं यही करूँगी. इंटरेस्टिंग थिंग. तो आपको क्या लगता है, आप जॉब की बात कर रही हैं, बट लाइफ में सबसे जरूरी स्किल्स कौन सी होती हैं? तो ये सिखाते हैं आपको? कम्युनिकेशन को आप थोड़ा डीपली डिफाइन कीजिए. सर, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन हैड परफेक्टली सेड कि अगर मैं कुछ अपने आप को नहीं समझा पा रहा तो मैं उसको किसी और को भी नहीं समझा पाऊंगा. My view on this is that communication is about understanding deeply the other person. So understanding what the other person is thinking, what the other person's experience is, what the other person is scared of, what the other person wants, those type of things, and then removing your ego. That's how I think about communication. What are the other skills that are important? So confidence. Self confidence में और arrogance में क्या फर्क है? Self confidence होता है, there is a level, एक level होता है. Arrogance में आता है कि आप अड़ जाते हो कि भले नहीं भी हो रहा तो करके दिखाएंगे. दुनिया को लगता है कि नहीं हो रहा तो भाग ले जाएंगे. और self confidence? You are well aware कि आप क्या कर रहे हैं. So can somebody who does not know be self confident? अगर मान लो उसको कुछ नहीं मालूम और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये नहीं मालूम, तो that is the form of self confidence. Yes. You said a beautiful thing about women reservation, and you said that since women are 50% of the population, so why only 33%? So can you throw some light on that? When I was younger, I was backpacking in Vietnam, and there I noticed women were very confident, not worried about anything. So I started asking, I said, where do you get this from? And the answer they gave me was that, look, during our fight for independence, we were fighting. This one woman told me, this country does not belong to men. It belongs to both men and women. In our country, men believe that. Women are not allowed to believe that. So we got independence. If you look at the role of women in that struggle, it was no less than men. So why should they have less rights? सर, एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर सब जनी पास होने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं. जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फेलियर के लिए कुछ सिस्टम है एजुकेशन में? एजुकेशन सिस्टम आपको 2-3 चीज़ों पे टेस्ट करता है, लाइफ पे टेस्ट नहीं करता है. और ये सोचना कि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ रहा हूँ इसका मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट आऊँगा, बिल्कुल गलत है. तो ये जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन की स्किल है, लोगों को समझने की स्किल है, ह्यूमिलिटी. आपने कम्युनिकेशन और की बात की, बेसिकली आप कह रहे हो देखो जो हम्बल है वो कम्युनिकेट कर पाएगा.
जिसमें अहंकार है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास दूसरी स्किल्स हैं और आप फेल भी हो गई, कॉलेज में फेल हो गई, जॉब में फेल हो गई और आप परसिस्ट करती गई, तो आप सक्सेस पा जाएंगे। सर एक्चुअली होता ये है कि जैसे भाई बहन है तो सिर्फ लड़कियों को ही शुरू से लाइक जो है उनको यही बोला जाता है कि आप ये काम करो, ये झाड़ू लगाना आना चाहिए, सब। तो इट्स लाइक कि उनको स्टार्टिंग You have been trained for a particular role. Yes, sir. ट्रेनिंग दी जा रही है। Why can't my brother do the same work I am doing as well as I am studying and he is also studying? So sir, why this barrier and such a thing? Women are never actually explained how money works, how power works, what money is. कितने सालों से आप पढ़ रही हो? 20 साल हो गए। मगर 20 साल में आपको किसी ने ये नहीं बताया कि भैया पैसा ये होता है, इसका डेफिनेशन ये होता है। Why? If we have money, we'll have independence, we'll have power, we'll have rights. We'll get them. तो क्योंकि वही थिंकिंग है कि अगर बता दिया तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो सकता बचा के। Yeah. Let us suppose you are walking on the street with this 20 rupee note. Now this value is 20 rupees. Now suppose a fellow comes to you, puts a gun on your head and says, give me that money. What is the value of that note now? So this thing keeps changing in value. It changes in value every second depending on the power structure around it. Okay? If a woman has understanding of money, she completely transforms. Yes, sir. In fact, if a woman has a job but does not understand money, that won't work. If a woman doesn't have a job and understands money, that's a powerful thing. And then if women don't understand these things, then they're always dependent on a man who is either doing a job or understands these things. सर तो इसी भी बॉलीवुड जैसा सवाल है, अगर एक दिन ये पीएम बने तो आप क्या करेंगे? See, there are two types of economies. There is a production economy, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। आजकल प्रोडक्शन को चाइना डोमिनेट कर रहा है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट पोजिशनिंग इंडिया। सर बट अब तो मतलब बंद हो जाना चाइना से लेना। नहीं, not बंद नहीं हुआ है, एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो चाइनीज इंपोर्ट्स आर शूटिंग अप। वो मीडिया कह रही है कि बंद हुआ है, बट एक्चुअली अगर आप नंबर्स देखेंगे नहीं हुआ। I mean, I would like that Chinese people are using made in India products. You know, made in Jaipur products, and some of you are running those companies that are sending those products there. That's what I would like to see. So the economy has to be realigned, where you have to believe in people. The banking system has to believe in people. If you look at Indian system in 70s, banks were lending much more to smaller industry, to entrepreneurs, etc., etc. Now the banks have been dominated much more by 2 or 3 large industrialists. सर कास्ट सेंसस पे आपका क्या ओपिनियन है? फैक्ट ये है कि जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं, ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो पावर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है ही नहीं। और किसी को ये नहीं मालूम कि ओबीसीज कितने हैं, दलित्स कितने हैं, ट्राइबल्स कितने हैं, अपर कास्ट कितने हैं। तो जैसे आपको चोट लगती है, पहला काम क्या करते हैं? चलो एक्सरे करते हैं, एक्सरे करके देखते हैं हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कहाँ टूटी है, कैसे टूटी है। तो कास्ट सेंसस है एक्सरे। कितने लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पावर स्ट्रक्चर में क्या रोल है। तो इट इज जस्ट टू सी भैया अभी स्टेटस क्या है। आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड कि दिस इज द स्टेटस, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो आई एम फॉर कास्ट सेंसस 100%। पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या बने? So I'm actually many things. I'm, for example, a teacher. I teach youngsters. I'm a cook. So I'm multiple things. But that's a complicated thing to put across. आपकी कॉलेज क्रश का नाम? Now you see. जैसे आप इतने स्मार्ट हो तो आपने अपने शादी का भी सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। आपकी सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन और फूड बेसिकली किसी एरिया का? My favorite destination is anywhere where I have not gone. Yeah. So I always like to see new places, but कुछ भी चलता है, बस ये करेला नहीं चलता है एंड मटर नहीं चलता है एंड पालक नहीं चलता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं? मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ।
नेचुरल। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह काफी चलती है, मीम्स वगैरह है। सर आपका एक बहुत फेमस वो मीम है, खत्म टाटा बाय बाय। क्या रिएक्शन है आपका? कभी कभी कहना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे ये मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि चलो खत्म टाटा बाय बाय। तो सबको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहूँगी उसकी, कि अपने इरादों का हर बार बखान मत दे, अपने कामों की हर बार